Hello, dear students. I think you all are doing good and your studies might be going very well. So, today, me and Kunda sir have assembled here to give some motivation to the students' community, for the school students, and for the entire community of students across the India. It's not only we are here only for the students of Patna, okay, across the India we are talking about. So today we need to discuss some very important points regarding how to actually progress on your success path. Being a student, what is more important? Yeah, of course, completing your syllabus on time, giving the examination, getting the results, these all are very important. But you know, one thing is also very important, and that thing is the full dedication and the full determination towards your study, that also matters a lot, right? How emotionally strong you are, that also matters in your overall success. So, as a student, what's your responsibility? Your responsibility is nothing, is not only to study about your academics, but you have to think about some other parameters as well. I've seen many people, they are all the time reading books, they are all the time, having, spending their time with their textbooks. It's not like that. You should have some hobbies, you should have, some extracurricular activities in your life, isn't it? Because, see, I'm telling you one very important fact. I know one of my students who has taken admission into the MITs, right? MITs, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Cambridge University. In those universities, it's not like your academics will be brilliant and you'll be getting selected. No, it's not like that. How extracurricular activities, how strong you are in your extracurricular activities, that also matters a lot in your overall selection. Yeah, of course, the IIT entrance examination in India is far more tougher than the MIT, no comparison for that. But still, in MIT, rather than your academics, your extracurricular activities are also very important. So, my dear students, you have to give more focus on each and everything. Okay, just try to read some stories books, some motivational stories, some kind of things which are very important, like some poetry books also, apart from the academics. So now Kundan sir will also talking about something for the students community, so that they could also be able to motivate you people. हाँ कुंदन सर, आप कुछ बताइए। बच्चे कभी भी हताश नहीं होना, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, निगेटिव रहिएगा तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो हमेशा लगे रहिए, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। आज जरूर सीखेगा, आज नहीं तो कल सीखना ही है। करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजात, तस्री आवत आत है सीरत पर पत निशान। एक सीखने के लिए आप लोग के लिए है। तो आप लोग दम प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। कभी डिमोटिवेट नहीं हुई है, कभी डिमोटिवेट हुई है तो मुझे कॉल कीजिए, मैं उसका निवारण करूँगा। और साथ में ये कहूँगा कि कभी भी जीवन से हताश ना हो। कभी भी बहुत बच्चे देख रहे हैं कि जैसे सर 10th के बच्चे लोग हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो पेरेंट्स प्रेशर का बहुत लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इज इट गुड सर? सर ये सिर्फ आपका, ये सिर्फ एजुकेशन ही नहीं सिर्फ है, तो बहुत ये ब्रॉड है। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, सिर्फ आप एजुकेशन भी कुछ करें, पढ़ाई से कुछ करें, आपके पास कुछ और भी हॉबीज़ हैं तो उसको लेकर चलें, उसको भी लेकर चलिए। यदि आप मान लीजिए एजुकेशन से पास करना है, ठीक है, लेकिन आपका हॉबीज़ कुछ कहीं और है तो उस पर फिर कीजिए फोकस आप लोग। लेकिन एजुकेशन भी ज़रूरी है, साथ में दोनों को लेकर चलना जरूरी है, ताकि बिना एजुकेशन का आप लोग कहीं सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। यदि किसी को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ दोनों को लेकर चलना है। जी सर, आपके ही इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ना कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। छोटी सी पंक्ति है ना, जस्ट मोटिवेशन के लिए, क्योंकि क्या है ना, स्टूडेंट लाइफ में मोटिवेशन जो है ना, वो एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। छोटी सी लाइन है कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। सही, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती फिर भी निकल सकती है। वाह, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती फिर भी निकल सकती है। इसलिए कहता हूँ, मायूस मत हो, हौसला रखना दोस्त, क्योंकि तेरी तकदीर कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी तकदीर कभी भी बदल सकती है। तो इस मोटिवेशन के साथ हम लोग आज आपसे विदा लेंगे।
लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप भी ना जी भर के पढ़ाई करेंगे और किसी भी तरह का डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कुंदन सर से पूछ सकते हैं, है ना। वी आर 24/7 अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ना कुंदन सर। यस सर। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका किसी भी तरह मेंटली प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकल हाँ, किसी भी तरह का प्रॉब्लम बिल्कुल, हो, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट करना जरूरी है सर। यदि बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो बच्चे कुछ ना कुछ फिजिकल भी जरूरी है, मेंटली भी जरूरी है, सोशल भी जरूरी है। आप सोशल मान लीजिए बच्चे सिर्फ घर में रहते हैं तो दबे दबे वो भी सही नहीं है। सोशल, क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको भी थोड़ा खुला सीखे, मार्केट में जाए, सीखे कहाँ पे क्या रेट है, कहाँ पे क्या है, तो सब कुछ सीखना ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग सीखिए। देखिए लर्निंग जो है ना आप लोग का, वो माँ के गर्भ से शुरू होता है, और आपका जो है जब तक मरते नहीं है, जब तक मृत्यु नहीं होती है, तब तक हम लोग सीखते रहेंगे। हम लोग भी क्या है, एक लर्नर है, टीचर नहीं हम लोग हैं। क्या है, हम लोग एक लर्नर है, इसको कहते हैं पीपल टीचर, ठीक है। तो हम लोग भी क्या है, लर्नर सीख रहे हैं। आपसे हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ हम आपको सिखा रहे हैं, बिल्कुल। एक दूसरे का क्या हो रहा है, उनका आदान प्रदान कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जी और बिल्कुल सही बात है ना। वी ऑल आर हियर टू सपोर्ट यू पीपल एंड एज ए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है। थोड़ा सा समय आप अपनी बॉडी को भी दीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं ना ऑनलाइन गेमिंग्स में पड़े हुए हैं। अब आप मुझे सोच के बताइए कि मैं चाहे कितना भी एफर्ट लगा दूँ, अगर इफ़ यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट, कई बार मैंने देखा है क्लासरूम में सर बच्चे फिजिकली तो प्रेजेंट हैं बट मेंटली दे आर नॉट प्रेजेंट। दिल्ली कहीं और तो अब मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर दूँ, क्या आपको उसका फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। व्यर्थ है। इसलिए आप जब जो काम कर रहे हो ना उसमें अपना 100%, जब आप खेल रहे हो ना सिर्फ खेल पे ध्यान दो। खेलते समय पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो फिर आपका खेल वाला जो पोर्शन है वो बाधित हो जाएगा। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे बात कर रहे हैं। फोकस, कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा है ना वो कॉन्वेक्स लेंस वाला एग्जाम्पल क्लास 10 फिजिक्स में, है ना। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, वो जो लाइट रे आती है इसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने के बाद उसमें आग तक लग जाती है। दैट इज़ वॉट कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल अबाउट, दैट इज़ वॉट फोकस इज ऑल अबाउट ना। your mind has to be focused in such a way so that whatever things you are learning, you are getting it at the same point of time, and according to that you will be progressing at the path of success. Can I ask you a question, sir? बिल्कुल बिल्कुल। How to concentrate our mind? सर देखिए कंसंट्रेशन के लिए मैं बच्चों को भी बताता हूँ, पेरेंट्स को भी खास करके मैं बोलता हूँ कि बच्चों को आप मेडिटेशन के लिए बोलिए, है ना। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में, और जिससे आप जो है ना आपके अंदर एक अच्छी वाली, जिसको बोलते हैं ना गुड वाली फीलिंग, वो आती है। और जब पढ़ाई में आपका मन बहुत अच्छे से लगता है। मेडिटेशन एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मेडिटेशन करने से क्या होता है आपके लंग्स में ऑक्सीजन की कैपेसिटी, सुबह से अगर आप करते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। और हर स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करना चाहिए। आप देख रहे हैं सर इतना ज़्यादा प्रेशर आजकल के बच्चों, इतना ज़्यादा बर्डन है, बच्चे डिफोकस हो जा रहे हैं। मतलब उनका फोकस जो स्पैन है, फोकस का जो टाइम स्पैन है वो घट के सर 2 मिनट 1 मिनट पे आ चुका है। मैं तो कहता हूँ सेकेंड्स में आ चुका है। इसलिए इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन लेवल, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर फोकस लेवल, देन मेडिटेशन विल एक्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर इन योर लाइफ। बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं सर ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा कुंदन सर पढ़ा रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, और आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है। हमने नोट्स तो बना लिया, सर ने पढ़ा दिया, हमने नोट्स बना लिया, लेकिन मुझे बताइए बच्चों, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो पता है क्या होगा, वही कॉन्फिडेंस वो आसमान से गिर के ज़मीन पे आ जाएगा और आपको फिर से वो स्टार्ट करना पड़ेगा। जितनी मेहनत आपने लगाई ना पूरी क्लास को करने के लिए, समझने के लिए और कवर करने के लिए, वो मेहनत आपको फिर से करनी पड़ सकती है। इसलिए आप जो रिवीजन वाला पार्ट है ना उसको अपने पास रखिए। सैटरडे में या फिर संडे में जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है ना, आप एकदम कोशिश कीजिए कि मेरे को रिवाइज़ करना है चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको रिवाइज़ करना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज़ करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ सर, बच्चे जो है ना शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं। अपनी लंबी लंबी थ्योरीज देखो सर ने पढ़ाई है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आप मुझे बताओ कि अगर कल एग्ज़ाम है तो क्या इतनी मोटी नोट्स कॉपी आप देख पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जवाब दे जाएगा, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है।
That's why I'm telling you people that you should have, you must prepare short notes, and the short notes will consist of important formulae, important concept. That's it. आप देखो कि आप कौन सी क्वेश्चंस में ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, उसको आप नोटबुक में आप लिख लीजिए कि हाँ, ताकि मैं दोबारा से ये गलती ना करूँ। आप कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही फार्मूला बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, उसको आप नोटबुक में लिख लीजिए, उसको रिवाइज करते रहिए। तो इससे क्या होता है ना, वो कहते हैं ना, गलती एक बार करो अच्छी बात है, लेकिन बार बार करो तो बेवकूफ़ी है। तो क्या आप बेवकूफ़ी करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रिविज़न पार्ट को सीरियसली लें। ठीक है सर, तो फिर हम लोग आज कंक्लूड करते हैं, और वैसे ही हम लोग मिलते रहेंगे बीच बीच में, बातचीत हमारी चलती रहेगी, है ना। और मैं एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग जो पढ़ाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि वो इंटरेक्टिव नेचर का, है ना। और हमने ये प्लान किया है कि नेक्स्ट टाइम से सर आपको कुछ क्वेश्चंस भी देने वाले हैं उसके। अच्छा, आज आपने दिए हैं सर, बहुत अच्छी बात है। उन क्वेश्चंस को आप पॉजिटिवली सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए कि आपके क्या आंसर्स आ रहे हैं। कुंदन सर उसको फिर सॉल्व करके उसका सही आंसर भी आपको बताने वाले हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, इंटरेक्टिव होगा सेशन। ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक वन डायरेक्शन चल रहे हैं, है ना, गाड़ी, है ना। इट शुड बी बाई डायरेक्शन। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, है ना, मैं कुछ बता रहा हूँ, आप कुछ डाउट्स पूछ रहे हैं, तो मुझे भी मज़ा आएगा, सर को भी मज़ा आएगा, और आप भी जो है ना आनंदित हो जाओगे। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बाय, खुदा हाफिज़।